morning, everyone. I hope you all can hear us and welcome to this session of seminar on labor laws for the promoters, for the businessmen, the entrepreneurs, and CXOs. The objective of this session and webinar today is to have expert opinion from Mr. Anurag Lakhotia, who has been, a prominent lawyer in the labor laws field. With us, we also have Mr. Kunal Gupta, who is the CEO of Mount Talent Group. Just a few ground rules. We will keep the questions to the end of the session for about 15 minutes. And if you have any questions, just feel free to put them in the chat box and we will take them one by one. Now, I would like Kunal to quickly go ahead and and do an introduction and start and kick off the webinar. Welcome to all of you. I think it's a pleasure to have all of you today morning. And so we run a business which is into employment and employee management. So we run an enterprise HRMS company as well as a job portal, wherein we provide both hiring as well as management of employees. Over the last 2 months, we have experienced a lot of our clients having and dealing with a lot of employee issues, labor issues, lack of revenue, shutting down of businesses. And, we thought it is pretty important to get all our clients as well as, delegates and eminent personalities like yourself, who are business owners and industrialists, to also have and join us on a discussion with one of the oldest and one of the most renowned labor law firms with whom we have been working for the last 8 years. Mr. Lakhotia represents a law firm, corporate legal industrial law firm. Since 1960, this firm has been in operation. And, I will hand it over to Anurag to possibly discuss and share the legal aspects about employee retention, about employee management, payment of salaries, opening up of offices, how to deal with various government agencies, what all to take care of, and currently what kind of policies apply and do not apply to business owners. So Anurag, I think without further delay, you should possibly just start and look at these points as to how it pains and how they can be managed by all of us. Thanks a lot, Kunal. Thanks a lot for a brief about me. And thanks a lot for creating Rozgar, this kind of a platform to share each and every aspect regarding labor laws. So a brief about me, I'm an advocate, majorly practicing various high courts, including our Delhi High Court. I've been dealing with this industrial labor law from 2000 for last 20 years. My Tauji, with whom I got trained, was an industrial labor law consultant from 1960. And from 1960 onwards, we are dealing with a subject called industrial labor law. So today, the basic concerns is COVID-19 lockdown period, which we have put in the posters also is, first and foremost is the salary. Second is termination. And then we are opening up with COVID-19, what kind of precautions we should take. So I'll be speaking in English as well as in Hindi, being an Indian right now. So सबसे पहला पॉइंट लेते हैं सैलरी के लिए. जो सैलरी का पॉइंट है, आज के टाइम पे कई जगह पर ये पॉइंट आता है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये ऑर्डर कर रखा है कि सैलरी देते रहें. You have to pay complete salary till this lockdown period is there. There is 29th of March 2020 order, which is getting circulated in WhatsApp media as if it's an order to pay all the employees. 29th March 2020 की सिचुएशन को अगर हम देखते हैं तो लॉकडाउन हुआ था around 22-23. Because of the lockdown, there was migratory workers which got stranded, which really got stranded in the various borders of all over India, which were in a lockdown position. 29th of March 2020, just to tackle that situation, the order was passed by the Ministry of Home Affairs. उसकी whereas body जो top की body होती है completely उसी के बारे में बात करती है कि migratory workers को कैसे situation को tackle किया जाए.
बाद में एक ऑर्डर उसके अंदर नीचे आता है उसी ऑर्डर के अंदर कि आप अपने एम्प्लॉइज को पैसे देते रहे लॉकडाउन पीरियड के तहत, बट उसमें एक मेजर पॉइंट है एट योर वर्क प्लेस. So basically the order was vis-a-vis migratory workers, which situation was afterwards tackled by the government by quarantining them at the borders itself. Then it came at 14th of April 2020. एक order आता है from Ministry of Home Affairs which says revised consolidated order for the lockdown. It's a revised and consolidated. In that 29th March is completely missing. There is not even a single thing about paying salary or something like that. However, some of the business owners, as well as some kind of a single entity, has landed up in Supreme Court challenging these orders. Supreme Court has recently passed that no coercive action to be taken against any of the manufacturer or a businessman. However, till today, as per my considered opinion, that order has already left its charm on 14th of April 2020 itself. Secondly, अभी 18 मई की भी आई है. 18 मई में तो स्पेसिफिक आ गया है कि पिछले ऑर्डर्स सारे खत्म हो गए. तो एट प्रेजेंट द सिचुएशन इज दिस. आज की बात करें तो 18 मई के ऑर्डर के बाद तो पुराने वैसे ही खत्म हो गए. इससे पीछे के लॉकडाउन पीरियड की बात करते हैं और उसे थोड़ा लॉ में लेके जाते हैं. इस ऑर्डर को थोड़ा सा लॉ से भी टच करते हैं. तो लेट अस स्टार्ट विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. So Constitution of India gives every citizen of India a fundamental right to do business. That is Article 19(1)(g). वो right to do business के अंदर right to terminate, right to close down, right to employ, and further वो right भी आता है if somebody works then you pay. It's basically every businessman will be paying salary to the person when he is working for that business. उसके बाद 19(2) आता है. वो कहता है आप रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो. कोई रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो जनरल पब्लिक के लिए अच्छा है, आप उस रिस्ट्रिक्शन को लगा सकते हो. तो उस रिस्ट्रिक्शन के लिए एनेक्टमेंट होनी चाहिए, लेजिस्लेचर की एक इंटेंट होनी चाहिए. हमने जो पार्लियामेंट्स में बिठा रखे हैं वोट देकर, उनकी एक इंटेंट होनी चाहिए, वो एक लेजिस्लेचर लेकर आए. तो एक लेजिस्लेचर है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट. वो इकलौता इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट ऐसा लेजिस्लेचर है जो कि मैं टर्मिनेशन की आगे बात करूंगा तो उसमें भी आएगा. और अगर इसको टच करता हूं तो ले ऑफ नाम का एक वर्ड आता है उस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में. तो ले ऑफ जो है वो ये अमेरिकन ले ऑफ नहीं है कि हमने किसी को निकाल दिया. इंडिया में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत ले ऑफ का मतलब है कि काम नहीं दे पा रहे तो 50% तनख्वाह देनी होगी. लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि वो वर्कर भी काम के लिए आए और तब काम ना दे पाए तो ले ऑफ है. तो कोविड-19 लॉकडाउन की सिचुएशन ऐसी थी, ना तो वर्कर काम के लिए आ पाया ना बिजनेसमैन काम दे पाया. तो ये ले ऑफ की सिचुएशन भी नहीं बनी. और सबसे बड़ी बात, ये ले ऑफ की सिचुएशन अगर बनती भी है तो ये उन पे लागू होगी जो वर्कमैन कैटेगरी में आएंगे. अगर मैं मेजरली बात करूं, ज्यादा लीगैलिटी में ना जाऊं, तो मोटा माटी ये बोलूं कि जो मैनेजर, एडमिनिस्ट्रेटर या सुपरवाइजर नहीं है, ये सिर्फ उसमें ही लगता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट. तो जो नॉन वर्कमैन है उसमें तो कुछ भी नहीं है. वर्कमैन पे मैक्सिमम ले ऑफ की बात हो सकती है. मेरे कंसिडर्ड ओपिनियन में ले ऑफ भी नहीं है, क्योंकि वर्कमैन भी अपने आप को रेंडर नहीं कर पाया सर्विसेज के लिए. ऐसी सिचुएशन में नो वर्क नो पे लगता है ऑन बिहाफ ऑफ अ बिजनेसमैन. अगर गवर्नमेंट इस एपिडेमिक सिचुएशन को डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत देखना चाहती है तो वो डायरेक्ट पेमेंट दे एम्प्लॉइज को. जो अभी उस स्टिमुलस लेकर आए हैं वो काफी हद तक इस चीज को कवर करने के लिए भी लेकर आए हैं. लेकिन इन एनी इवेंचुअलिटी a government cannot take away a fundamental right of a businessman by just saying कि आप तनख्वाह देते रहना, रेवेन्यू का पता नहीं है. So this is totally ultra virus to constitution. However, this is subject to Supreme Court today. So अगर मैं सैलरी की बात करूं तो पहली बात 29 मार्च का ऑर्डर माइग्रेटरी वर्कर्स के लिए था सिर्फ, ना कि जनरल वर्कर्स के लिए, जो एम्प्लॉयज के लिए जो यहीं रह रहे हैं, आसपास ही रह रहे हैं. दूसरी बात, वो वहीं पर ही टैकल कर लिया गया था बाय क्वारंटाइनिंग देम. थर्ड पॉइंट, 14 अप्रैल को रिवाइज कंसोलिडेटेड टर्म्स आ चुकी थी. तो रिवाइज कंसोलिडेटेड टर्म्स में 29 मार्च का ऑर्डर था ही नहीं.
last and foremost, it is ultra virus to constitution, but this is subject to honorable Supreme Court. आज की स्टेट सुप्रीम कोर्ट में ये है that they have given an order only that don't take coercive action. मीडिया में चल रहा है, सोशल मीडिया में चल रहा है कि ऑर्डर खत्म हो गया है, ऐसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने सेटिसाइड नहीं किया है अभी तक। हाँ, रही बात 18 मई के ऑर्डर में, 18 मई के ऑर्डर के अंदर स्पेसिफिकली 18 मई के ऑर्डर के अंदर पिछले ऑर्डर्स को खत्म कर दिया गया। नाउ कमिंग टू द पॉइंट ऑफ टर्मिनेशन, क्योंकि काफी बिजनेस हाउसेस में ऐसी सिचुएशन आ रही है कि आइदर वी हैव टू पुट एम्प्लॉइज लीव विदाउट पे या हम उसे टर्मिनेट करें। अब लीव विदाउट पे का जो कंसेप्ट है, लीव विदाउट पे किसी को दे नहीं सकते, लीव इंसान ले सकता है, एन एम्प्लॉय कैन आस्क फॉर अ लीव। नाउ इन केस यू आर अनेबल टू हैव अ वर्ड विद योर एम्प्लॉइज, then in that eventuality you have 2 points which you can do. One is termination of employees, another is taking a risk of putting them on leave without pay and taking a consent from them. Now मैं बात करता हूं अब टर्मिनेशन के पार्ट की। टर्मिनेशन का जो क्लॉज है वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट से ही रेंडर होता है या कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स पे आता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स तब लगती हैं जब वो नॉन वर्कमैन आता है। अगर वो वर्कमैन की कैटेगरी में आ रहे हैं तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की कैटेगरी में आएंगे। उन्हें अगर आप किसी मिसकंडक्ट के कारण नहीं निकाल रहे हैं तो उसे रिट्रेंचमेंट की परिभाषा कहते हैं। द वर्ड लीगल टर्म इज रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट में अगर आप करते हैं तो आपको 15 दिन की सैलरी हर साल पे काम किए को देना पड़ता है। दैट इज अ एक्स्ट्रा कंपनसेशन प्लस 1 मंथ नोटिस। आई रिपीट, 15 days सैलरी ऑन ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस plus 1 month salary under the clause of retrenchment section 25F। हाँ, रिट्रेंचमेंट में कौन कौन नहीं आएगा? अगर कोई प्रोबेशन पर है, कोई फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट पे है, कोई रिजाइन कर रहा है, कोई रिटायर हो रहा है। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो कि मैनेजर, सुपरवाइजर और एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है, उनका कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म से निभाया जाएगा। सिंपल सिविल कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज एन अपॉइंटमेंट लेटर। मैं बात कर रहा हूं उनकी जो वर्कमैन कैटेगरी में आते हैं। हाँ, अगर ऐसा ही है कि हम पैसे देके निकाल सकते हैं तो हायर एंड फायर की पॉलिसी हिंदुस्तान में क्यों कहा जाता है कि है ही नहीं? उसका रीजन ये है कि देयर आर 2 more sections which governs this. One is 25G and 25H which says कि लास्ट कम फर्स्ट गो, सबसे पहले जूनियर को निकालोगे, सीनियर को बाद में। और दूसरी बात, अगर आपको वापस काम की जरूरत पड़ती है तो इन्हीं को वापस काम पे बुलाने का फर्स्ट आपकी ड्यूटी बनेगी, उनका राइट भी बनेगा री एम्प्लॉयमेंट का। Therefore, hire and fire is not here in India. Second foremost thing कि चैप्टर 5B नाम की एक चीज है जो कहता है कि अगर 100 से ज्यादा एम्प्लॉई हैं, सेंट्रल एक्ट कहता है, कुछ स्टेट एक्ट्स भी हैं जो 1000 कहते हैं, 300 कहते हैं। अगर किसी फैक्ट्री में, यहाँ पे अगर कोई फैक्ट्री ओनर है तो किसी फैक्ट्री में अगर 100 से ऊपर एम्प्लॉई है, अगर यूपी में है तो 300 से ऊपर एम्प्लॉई है, तो आप ना तो रिट्रेंच कर सकते हो ना क्लोज कर सकते हो विदाउट द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट। दिस इज द एस्पेक्ट विच इज गोइंग ऑन। ये बात हुई टर्मिनेशन की, उनकी जो कि वर्कमैन कैटेगरी में आते हैं। बात आती है उनकी जो नॉन वर्कमैन कैटेगरी में आते हैं, जो कि इन लेमैन टर्म्स वी से स्टाफ है, बट टू बी प्रिसाइज एडमिनिस्ट्रेटिव, मैनेजरियल और सुपरवाइजरी नेचर ऑफ वर्क कर रहे हो। उनके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है अपॉइंटमेंट लेटर। यू कैन सिंपली टर्मिनेट देम विज़ दैट कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स। कहीं पर भी कोई भी ऑर्डर आपको ये करने से नहीं रोक रहा है अंडर डीएम एक्ट, दैट इज डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, या कोविड से रिलेटेड और कितने भी एक्ट हो। Nobody is actually stopping you to do that. You are legal enough to take care of this part, even for probationers, for fixed term contracts of the workman category. So to summarize this aspect, I say कि किसी को निकाल सकते हैं, yes निकाल सकते हैं। आपको अगर वर्कमैन कैटेगरी है तो रिट्रेंचमेंट निभाना पड़ेगा। अगर वो प्रोबेशनर्स, रेजिग्नेशन, रिटायरमेंट, फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो for the purpose of administrative staff, managerials and supervisories, the contractual terms, that is the contract, that is the appointment letter would prevail. उसमें आप 1 महीने का अगर नोटिस दे रखा है, जो भी नोटिस पीरियड दे रखा है, उस एम्प्लॉय से बात कर बेटर है कि उसे रिजाइन लेकर उसको ठीक से अलविदा कहा जाए। अब क्वेश्चन आता है, जो पॉइंट आता है कि अभी सैलरी भी नहीं दे रहे, नो वर्क नो पे है,
तो फ्रॉम वेयर वी शुड रिटेन दिस एम्प्लॉइज, एक तो ह्यूमन एंगल है, दूसरा एंगल है रिटेंशन ऑफ एम्प्लॉइज ऑल्सो.